नमस्ते दोस्तों। वेलकम टू विज्ञान मार्ग। मैं हूं आपका एडुकेटर और आज के इस वीडियो में हम डीबीटी बेट 2024 के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आप डीबीटी जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो पीवाईक्यू सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। ये आपको एग्जाम पैटर्न समझने, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आइडेंटिफाई करने और अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को इम्प्रूव करने में बहुत मदद करेगा। आज के इस सेशन में हम 2024 के पीवाईक्यू को डिटेल में सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे और इम्पोर्टेंट एग्जाम टिप्स एंड ट्रिक्स भी डिस्कस करेंगे, जो आपको आगे डीबीटी बेट क्रैक करने में हेल्प करेगा। तो अगर आप बेट जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, मैच द आइटम्स इन द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज responsible for TCA cycle, and endoplasmic reticulum is involved in protein trafficking and export. Peroxisomes are involved in hydrogen peroxide generation. Lysosomes are responsible for degradation of proteins. तो हमारा ऑप्शन 3 जो है यहाँ पे ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे फिर से मैच द फॉलोइंग। तो pH of the solution is related to Henderson-Hasselbalch equation. Base composition of DNA follows Chargaff's principle. Molar absorption coefficient is described by the Lambert-Beard law, and dideoxy sequencing was developed by Frederick Sanger. तो यहाँ पे हमारा फिर से ऑप्शन 3 जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। Its number increase by fission. Defective mitochondria are removed by a process called mitophagy. In actively respiring mitochondria, the matrix is more acidic than the intermembrane space. Many of the mitochondrial protein are encoded by the nuclear genome. तो माइटोकॉन्ड्रिया रेप्लिकेट बाय बाइनरी फिजन सिमिलर टू द बैक्टीरिया, ये जो पहला ऑप्शन है ये करेक्ट है। नेक्स्ट, mitophagy is selective autophagy process that degrades damaged mitochondria. ना हमारा दूसरा ऑप्शन भी सही है। In the case of third option, in actively respiring mitochondria, protons are pumped into the intermembrane space, making it more acidic than the matrix. प्रोटॉन जो है वो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में पंप होता है, ना कि मैट्रिक्स में, ना कि इंटरमेम्ब्रेन मैट्रिक्स में पंप होता है, ना कि इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। And the fourth option, mitochondria have their own DNA. Most mitochondrial protein are encoded by nuclear genes and imported into the mitochondria. तो हमारा ऑप्शन 3 जो है ये इनकरेक्ट है। Now question number 4, which one of the following statements regarding miRNA is incorrect? फिर से हमारा पूछा है इनकरेक्ट। तो generated from large precursor RNA, सेकेंड ऑप्शन है inhibit translation by binding to the 3' UTR of the mRNA. Biogenesis involved RNase H. And fourth option है present in higher eukaryotes including nematodes, fruit fly, plants and mammals. तो miRNAs are initially transcribed as primary miRNA, which are then processed into precursor miRNA before being cleaved into matured miRNA. तो हमारा पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, जनरेटेड फ्रॉम लार्ज प्रिकर्सर आरएनए। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं,
mRNA are regulated gene expression by binding to the 3' untranslated region जो है 3' UTR of targeted mRNA leading to the translation repression of mRNA degradation। जो हमारा दूसरा ऑप्शन भी है वो करेक्ट है। इन द केस ऑफ थर्ड ऑप्शन mRNA biogenesis does not involve RNase H. Instead, it involved DROSA, a nuclear RNase to enzyme that precursor mRNA, and dicer, ये दो सब यूनिट जो है वो इन्वॉल्व है ड्रोसा एंड डाइसर, ए साइटोप्लाज्मिक RNase 3 enzyme that process pMRNA into the mature mRNA। तो यहाँ पे RNase H जो है वो इन्वॉल्व नहीं होते, तो हमारा ऑप्शन 3 जो है वो इनकरेक्ट है। एंड ऑप्शन 4 भी देख लेते हैं, वही mRNA आर वाइडली फाउंड इन हायर यूकैरियोट इंक्लूडिंग निमाटोड्स like C. elegans, fruit fly like Drosophila and plants and animals, सब में mRNA पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे भी आपको मैचिंग करना है। तो सल्फर कॉन्टेनिंग एमिनो एसिड जो है वो है मिथ्योनिन। ऑप्टिकली इनएक्टिव एमिनो एसिड है वो है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन इज द ओनली एमिनो एसिड्स दैट लैक ऑफ कायरल सेंटर मेकिंग इट ऑप्टिकली इनएक्टिव। एंड एसिडिक एमिनो एसिड है एस्पार्टिक एसिड एंड बेसिक एमिनो एसिड है लाइसिन। तो यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज द यूनिट। तो रेट कांस्टेंट निकलने का एक इजी सा फॉर्मूला है जो वो है यूनिट k इक्वल टू मोल टू द पावर 1 माइनस n, l टू द पावर n माइनस 1 एंड s टू द पावर 1 माइनस n। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है दिस इज ए फास्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो हमारा फास्ट ऑर्डर रिएक्शन n इज इक्वल टू 1 होगा। तो यहाँ पे हमारा हम जो n के बदले में यहाँ पे ये हम 1 पुट करेंगे तो हमारा s टू द पावर माइनस 1 आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होता तो n इज इक्वल टू 2 ऐसे ही कंटिन्यू होगा। तो ये यहाँ पे हमारा ऑप्शन 1 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ऑप्शन 1। तो क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NaOH इज रिक्वायर्ड टू मेक 100 ml ऑफ 0.2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH। तो ये भी एक इजी सा क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारा NaOH मास ऑफ NaOH निकालने का जो फॉर्मूला है मास इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इंटू मोलर मास। तो यहाँ पे हमारा सारा कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। मोलारिटी है 0.2 मोलर, वॉल्यूम है 100 ml, इसको हम लोग लीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.1 लीटर, मोलर मास है 40 ग्राम पर मोल। ये सारे इंफॉर्मेशन हम फॉर्मूला के हिसाब से पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.8 ग्राम। तो हमारा ऑप्शन 4 जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, फिर से मैच द फॉलोइंग। तो हमारा सुक्रोज ग्लूकोज सुक्रोज ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज यहाँ से मैच करेगा। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, मोल्टोज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज एंड फ्रुक्टोज इज ए मोनोसेकाराइड एंड लैक्टोज ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज से बनता है। तो हमारा ऑप्शन 4 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स in terms of Avogadro's number are present in 9 ग्राम ऑफ H2O। तो यहाँ पे भी हमारा वेरी इजी सा फॉर्मूला यूज होगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर जो कि है 18 ग्राम पर मोल, ये हम सभी को पता है। नंबर ऑफ मोल्स रिक्वायर्ड ऑफ H2O इन 9 ग्राम, तो हम मास ऑफ H2O को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे तो हमारा मोल फ्रैक्शन आ जाएगा जो कि 0.5 मोल। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन 0.5 मोल जो है 1 मोल कंटेन्स n मॉलिक्यूल्स एंड 0.5 मोल्स कंटेन्स 0.5 into n मॉलिक्यूल ऑफ H2O। तो हमारा यहाँ पे ईच वाटर मॉलिक्यूल कंटेन्स 1 ऑक्सीजन एटम्स, तो टोटल ऑक्सीजन एटम आ जाएगा 0.5 Na जो कि है 0.5 एवोगाड्रो नंबर।
तो ये हमारे यहाँ पे हमारा ऑप्शन 3 जो है Na/2 जो कि हाफ होता है वो आंसर है। ऑप्शन 3 जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, polymerization of isoprene gives polymerization of isoprene gives the polymerization of isoprene which is 2-methyl-1,3-butadiene leads to the formation of natural rubber. Natural rubber is a polymer of isoprene and is also known as polyisoprene. It is obtained from latex of rubber tree. The polymerization occurs via addition of polymerization leading to 6,1,4 polyisoprene structure। तो यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन 1 वो करेक्ट ऑप्शन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मेनी pi bonds are present in cyanobenzene? तो साइनोबेंजीन में कितने पाई बॉन्ड पाया जाता है? ये है स्ट्रक्चर ऑफ साइनोबेंजीन जो कि कहा जाता है बेंजोनाइट्राइल। साइनोबेंजीन कंसिस्ट ऑफ बेंजीन रिंग जो कि आपको देखने को मिलता है बेंजीन रिंग विथ ए साइनो ग्रुप अटैच्ड। यहाँ पे साइनो ग्रुप अटैच्ड है। द बेंजीन रिंग हैज 3 पाई बॉन्ड। यहाँ पे आपको 3 पाई बॉन्ड देखने को मिल जाता है। एंड द साइनो ग्रुप हैज ट्रिपल बॉन्ड व्हिच कंटेन 2 पाई बॉन्ड। ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये 2 पाई बॉन्ड कैरी करता है। एंड सो द टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इज 3 + 2 5 पाई बॉन्ड। तो हमारा जो ऑप्शन 2 है ये करेक्ट ऑप्शन है। नाउ गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। Statement 1, penicillin is an antibiotic derivative from fungus। Statement 2 कहता है antibiotics are compounds obtained from microorganisms and are used as a painkiller। तो स्टेटमेंट 1 जो है यहाँ पे करेक्ट है क्योंकि पेनिसिलिन इज एन एंटीबायोटिक डिराइव्ड फ्रॉम पेनिसिलियम फंगस। ऑप्शन स्टेटमेंट 1 जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। एंड एंटीबायोटिक्स आर नॉट यूज एज ए पेन किलर। एंटीबायोटिक्स एज ए पेन किलर नहीं यूज होता है। दे आर यूज टू किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। पेन किलर्स आर एनाल्जेसिक आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो सो हमारा यहाँ पे ऑप्शन 3 जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग collision the total linear momentum of two colliding bodies is completely conserved? Elastic collision, completely inelastic collision, partially elastic collision, any type of collision, elastic, completely inelastic और partially elastic। तो यहाँ पे जो है momentum is always conserved in every type of collision as long as there is no external force acting on the system. The type of collision only affect whether kinetic energy is conserved, not momentum। यहाँ पे जो है in the case of elastic collision, momentum and kinetic energy both are conserved। In the case of completely inelastic collision, momentum conserved but kinetic energy lost। In the case of partially elastic or inelastic collision, momentum conserved, some kinetic energy lost। यहाँ पे in every 3 cases the momentum is conserved in every 3 cases। so मेरे हिसाब से ऑप्शन 4 आंसर होना चाहिए बट डीबीटी के आंसर की में ऑप्शन 1 गिवन है तो इलास्टिक कोलिशन एक करेक्ट ऑप्शन है। Arrange the following in the ascending order of their frequencies: ultraviolet rays, microwaves, X-ray, sound waves and infrared waves। तो यहाँ पे अगर हम इन डिटेल में देखें तो सबसे रेडियो वेव्स, उसके बाद आता है माइक्रोवेव एंड इंफ्रारेड रे, उसके आता है अल्ट्रावायलेट वेव एंड उसके बाद आता है एक्स रे एंड गामा रेज। ये जो है इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग ऑर्डर में है और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है एंड यहाँ पे जो है वेव लेंथ वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। जैसे कि आप लोग
हम लोगों को पता है अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ता, जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा उसका वेवलेंथ कम होगा। तो यहाँ पे इन द केस ऑफ साउंड वेव्स फ्रीक्वेंसी रेंज होता है 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। इन द केस ऑफ माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी रेंज जो होता है 300 मेगा हर्ट्ज टू 300 गीगा हर्ट्ज। ये कॉमन यूजेस भी जान लेना अच्छा है, ये बाद में एग्जाम में आ भी सकता है। माइक्रोवेव यूज होता है कम्युनिकेशन, राडार में और कुकिंग में। जो माइक्रोवेव है उसमें माइक्रोवेव यूज होता है। इन द केस ऑफ इंफ्रारेड वेव्स इसका फ्रीक्वेंसी है 300 गीगाहर्ट्ज टू 400 टेराहर्ट्ज। इसका कॉमन यूजेस है हीट सेंसिंग, रिमोट कंट्रोल्स, थर्मल इमेजिंग। इन द केस ऑफ अल्ट्रावायलेट वायलेट रेज ये जो है 800 800 टेराहर्ट्ज टू 30 पेटाहर्ट्ज तक है। ये यूज होता है स्टेरलाइजेशन, ब्लैक लाइट्स, सनबर्न, यूवी रेडिएशन में। इन द केस ऑफ एक्स-रे फ्रीक्वेंसी है 30 पेटाहर्ट्ज टू 30 ई हर्ट्ज, जो कि यूज होता है मेडिकल इमेजिंग, सिक्योरिटी स्कैनिंग एंड क्रिस्टलोग्राफी में। क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है, बट इंफॉर्मेशन के बेसिस पे डी, उसके बाद बी आना चाहिए माइक्रोवेव, उसके बाद इंफ्रारेड वेव आना चाहिए। बाकी ऐसा ऑप्शन दिया है तो ऑप्शन वन ही ज्यादा करेक्ट है, बी और ई थोड़ा इधर उधर है, बट ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। बाकी का रेंज जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है। ये सारे इंफॉर्मेशन याद रखना है। फर्स्ट आता है रेडियो वेव, फिर माइक्रोवेव, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर एक्सरे, फिर गामा रे। ये है फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा तो वेव लेंथ डिक्रीज होगा। ये भी एग्जाम में कभी कभी आ सकता है। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ acceleration due to gravity on the surface of earth is g if diameter of earth become 4 times its present value and mass remains unchanged. The new value of g on the surface of earth will be। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। We know that the acceleration due to gravity on the surface of the planet is given by g equal to gm by r square। ये जो इसका फॉर्मूला है, g है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m है मास ऑफ द अर्थ एंड r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन गिवन है कि if the diameter of the earth becomes 4 times then the radius r also becomes 4 times in its original value. Since the mass remain unchanged, the new acceleration due to the gravity g dash will be gm equal to 4r to the power square। यहाँ पे हमारा डायमीटर जो है वो रेडियस से 4 गुना हो रहा है, तो यहाँ पे 4r यहाँ पे आ जाएगा 4r स्क्वायर। जैसे कि हमें g इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, ये अगर हम एक नंबर इक्वेशन पकड़ चले और ये 2 नंबर इक्वेशन, तो यहाँ पे हमारा जी एम बाई आर स्क्वायर ये जो है g से रिप्लेस हो जाएगा, जी एम बाई आर स्क्वायर ये जी से रिप्लेस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा g बाई 16। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन 4 जो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16, a ball is thrown vertically upward in the air with a certain velocity v, its acceleration and velocity at the highest point respectively will be। तो when the ball is thrown vertically upward it moves against the gravity। अगर इसको vertically upward फेंकेंगे तो ये against the gravity ऊपर जाएगा, at the highest point ये ऊपर आकर यहाँ पे जो वेलोसिटी हो है वो 0 हो जाएगा। उसके बाद when the ball momentarily comes to rest before starting to fall back down, इसका एक्सेलरेशन अगर हम ऊपर की तरफ फेंकेंगे तब उसका एक्सेलरेशन प्लस में होगा, जब वो नीचे ग्रेविटी की तरफ आएगा तब उसका एक्सेलरेशन माइनस में आएगा, माइनस जी। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन हो जाएगा। उसके बाद बॉल माइनस जी एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आएगा, तो यहाँ पे माइनस जी आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, माइनस जी एंड 0। The velocity of light in vacuum
is 3 into 10 to the power 8 meter per second. If the refractive index of glass is 1.5, what will be the velocity of light in the glass? So the velocity of light in a medium is given by the formula v equal to c by n. ये जो फॉर्मूला है, ये सारे फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये नेक्स्ट एग्जाम में भी आ सकता है। तो v इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द लाइट मीडियम, c इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द लाइट एंड n है जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो सिंपली हम जो लोग जो है ये फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आ जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा ऑप्शन 2 जो है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, Sunita is looking for her father. She went 90 meter east before turning to her right. So she went 20 meter, took a right turn and walked for 30 minutes to look for her father and her uncle's at her uncle's place. Not finding him there, she went 100 meter to the north before meeting her father in a street. How far Sunita from her starting point? चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहले जो है ये ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ का ये जो है मैपिंग कर लेंगे। उसके बाद जैसे हमारा क्वेश्चन में गिवन है ऐसे हम लोग ड्रॉ करते जाएंगे। सी वेंट 90 मीटर ईस्ट फ्रॉम बिफोर टर्निंग टू हर राइट। जो ये जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, अगर हम इसको एक क्वाड्रेंट की तरफ देखें, ये जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये जो है सेकेंड क्वाड्रेंट, ये जो है थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये जो है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ऐसे काउंट होता है 0,0, जैसे कि हम लोग क्वाड्रेंट में पढ़ चुके हैं मैथ में, ये 0,0 से स्टार्ट होगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट से ये ईस्ट की तरफ 90 मीटर गई, 90 मीटर गई। उसके बाद राइट टर्न लेकर वो 20 मीटर गई साउथ की तरफ। उसके बाद फिर से he walked for 30 meter to look for her father at her uncle's place and he took right turn। तो उसके बाद फिर से उसने राइट टर्न लिया, राइट टर्न मतलब फिर से वेस्ट की तरफ गई 30 मीटर। तो यहाँ पे वो पहले 90 मीटर आई, फिर बैक में 30 मीटर गई। तो यहाँ पे हमारा 90 माइनस 30 हो जाएगा जो कि है 60। अब वो स्टार्टिंग पॉइंट से 60 मीटर दूरी की तरफ है जो कि हमारा सेकेंड पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद फिर से वो 100 मीटर नॉर्थ की तरफ गई। वो पहले 20 मीटर आई थी, फिर 100 मीटर बैक गई, मतलब 20 मीटर गई उसके बाद 100 मीटर। तो यहाँ पे हमारा 100 माइनस 20 हो जाएगा, तो कि वो 80 मीटर एक्स्ट्रा गई। तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा विच इज 80। तो हम ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं x2 माइनस x1 एंड y2 माइनस y2 y1। किसी भी क्वाड्रेंट में अगर हमको ये किसी भी पॉइंट का वैल्यू पता करना है तो हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करते हैं। तो अगर आप इस फॉर्मूला को यहाँ पे हम फॉर्मूला के नीचे पुट करेंगे तो 60 माइनस 0 एंड 80 माइनस 0 टू द पावर 2 एंड अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 100 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो ऑप्शन 2 जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा 100 मीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, इफ sales tax is reduces from 3 to the power 1 by 2% and 3 to the power 1 by 3%, then what will be the reduction in the net price of an article with a marked value of 8,400? तो अगर इसका हम एक्सप्लेनेशन देखें तो सेल्स टैक्स रिड्यूस फ्रॉम 3.5% टू 3.1/3%। तो अगर हम इसको परसेंटाइल में परसेंटाइल से डेसिमल में कन्वर्ट करें तो हमारा 0.035 आ जाएगा एंड 3.1/3 हाफ आ जाएगा, 3.1/3 आ जाएगा 0.033%। तो हमारा कितना टैक्स रिडक्शन आ रहा है माइनस करेंगे तो 0.0017 जो कि है 0.17% टैक्स रिडक्शन हो रहा है। तो हमारे यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है 8,400। तो इससे हम इंटू करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा परसेंटेज को यहाँ पे
इंटू करेंगे तो हमारा आ जाएगा 14.25, जो कि राउंड ऑफ करके 14 आता है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन 3 है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, 15 men working 9 hours a day can reap a field in 16 days. In how many days will 18 men reap a same field working 8 hours a day? इसका जो है एक सिंपल फॉर्मूला है, m1 into d1 into h1, number of men into days into hour इक्वल टू, उसके बाद m2 इक्वल टू d2 इंटू h2। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन ने पूछा है 18 मेन कितने दिन में, कितने दिन में कितने दिन काम करेंगे। अगर 8 आवर काम करे तो हाउ मेनी डेज, यहाँ पे जो है ये D2 रिक्वायर्ड है, तो हमारा M2 और H2 यहाँ पे आ जाएगा। तो हम जैसे कि M1 है 15, D1 16 एंड H1 9, एंड क्वेश्चन में पूछा है 18 डेज में 18 मेन 8 आवर काम करेंगे तो कितना दिन लगेगा, तो हम ऐसे पुट कर देंगे तो हमारा D2 आ जाएगा 15 डेज। तो 15 डेज में काम होगा, तो हमारा ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो अभी हम 20 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो इसके बाद बाकी का भी वीडियो आएगा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और आपको किसी भी तरह के कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, आपको आंसर मिल जाएगा। एंड आगे की बाकी के पार्ट भी जल्दी आएंगे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और विज्ञान मार्ग के साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।